Today we are going to cover a very important topic, which is cardiovascular system. Out of all system, how it work, we are going to explain you there. So what is cardiovascular system? Let's understand in depth. I am going to make you through in very simpler terms that you can understand and implement in a best possible way. Cardio is your heart, यानी आपका दिल है. Vascular is your artery, capillary and veins. Okay, so this is a combination of two things. When it combined together, it becomes cardiovascular. So let's make it more interesting and more understandable for everyone. इसको और अच्छे से समझने का एक तरीका है cardio. So this is the position of your heart. If you look at the 3D angle, so if you look at the top position, it looks like your feet size. All right. So now here, how your heart function, along with we are going to talk about artery, your veins, capillary, and the third component, which is about your blood available in your body. So it is the combination of all three things which combine together. यानी कि जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा हार्ट उसमें आता है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो कि हम वैस्कुलर्स में बात करते हैं तो उसमें हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं. उसके साथ जो इनमें ट्रैवल करता है वो आपका ब्लड है. सो दिस इज व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. नाउ हाउ योर हार्ट वर्क, लेट्स अंडरस्टैंड इन मोर इन डेप्थ. आई एम टेकिंग यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो कार्डियोवैस्कुलर, as I mentioned, this is the position of your feet. So we divide into four pieces. All right. So upper part is called atrium and lower part is called ventricle. Again I divide like this. So upper part, superior part will call atrium. ऊपर के पार्ट को हम कहेंगे atrium. इसके नीचे अगर हम जाएं तो इसको हम बोलेंगे ventricle. यानी कि we divide like this, then it is left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. So what is the function of artery, vein and capillary in your body? We need to understand it. Artery carry oxygenated blood, all right, which divide into throughout your body and reach into the cellular level of your body. जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर लेवल पे, वहाँ तक आर्टरी ऑक्सीजन पहुँचाती है. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है वेन का, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है. अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है? यानी कि इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड जो आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करके आपके हार्ट में एंटर करता है वेना कावा, जो कि सबसे बड़ी वेन है आपकी पूरी बॉडी की, जिसमें से आपका इम्प्योर ब्लड आपके हार्ट में एंटर करता है. तीसरी बात है जो हम बात करना चाहते हैं, कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरी वो एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कैपिलरीज एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पे सेलुलर लेवल तक का ऑक्सीजन उसमें से निकल जाता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू होते हुए आपके सबसे बड़ी वेन जो कि वेना कावा है उसमें आके एंटर कर जाता है, जो कि आपके हार्ट के अंदर कनेक्ट हो जाती है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ artery, vein and capillary. Heart, as I told you about this earlier as well, it is the position of the heart. It looks like a feast. Now I am going to make you understand what are the four walls are there. So what is the wall? We need to understand. So wall are basically, wall होते क्या हैं? Wall को एक लेमैन में समझाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. अगर मैं ध्यान से देखूं, it is like a small gap you can see from there. So if blood pass from there, it's shut down, so blood is not able to go back. That's why there are four walls are available in your heart. All right. So first wall which is called tricuspid wall. Now what is tricuspid wall? The name depict, जैसा नाम दिखाई दे रहा है tricuspid, तीन जगह से उसकी शेप कनेक्टेड होती है, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं. और ये आपका जब वेना कावा से अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहला वॉल आता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं. वॉल जैसे ही बंद होता है, ये हमारा इम्प्योर ब्लड है, ये मेरा राइट साइड का एरिया है. यानी कि मैं अगर यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, ये ब्लड जो यहाँ से जा रहा है, जो पहला वॉल आएगा दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल. द मोमेंट ट्राइकस्पिड वॉल शट डाउन, द ब्लड विच हैज रीच इनटू राइट वेंट्रिकल, नाउ इट कांट गो बैक. यानी कि जो ब्लड
नीचे पहुंच गया है आपके राइट वेंट्रिकल में, ये वापस एट्रियम एरिया में नहीं आ सकता, राइट एट्रियम में नहीं आ सकता। अब यहां से मुझे इसको ये एंटर करेगा आपके लंग्स, पल्मोनरी। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द वॉल इज पल्मोनरी वॉल। दिस इज द नेम ऑफ द सेकंड वॉल। यहाँ पे जब पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट हमारा एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑपोजिट है। आर्टरी क्या करती हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो जैसे ही मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की ओर जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वापस आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अगेन एक्सेप्शन इज देयर, पल्मोनरी वेन। द नेम डिपिक्ट, जैसा नाम दिखाई दे रहा है, वेन। वेन क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन जब वापस आती है तो अपने साथ लेके आती है ऑक्सीजन, जिसको पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। उसके बाद ये आपका एट्रियम, आपका लेफ्ट एट्रियम में पहुंच चुका है। अब लेफ्ट एट्रियम से नीचे बीच में अगेन एक वॉल आता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल को पास करता हुआ ये प्योर ब्लड नीचे पहुंचता है। अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट, दैट इज कॉल्ड योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी बॉडी में अब ब्लड जाने की तैयारी है। तो इसीलिए यहाँ से जैसे एक इजेक्शन होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि एक बीट पे कितना ब्लड निकलता है, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। उसके बीच में एक वॉल है, जिस वॉल को नाम बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटा से होता हुआ जा रहा है, ऑटिक वॉल। उसके बाद इट रीच इनटू ऑटा। ऑटा इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। सो बिगेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी मीन्स बहुत बड़े बड़े पाइप, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पाइप ऑटा में डिवाइड होता है, छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होता है, और वो छोटी छोटी आर्टरी आपकी पूरी बॉडी में हर सेलुलर लेवल तक जाके कनेक्ट होती है ताकि वहां पे ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑलराइट, सो दिस इज आर्टरी। नाउ आई एम मेकिंग यू थ्रू द different phase of this. Now I'm trying to make you understand what is systolic, what is diastolic, and how it works. So let's understand about this. What is systolic? Systolic means जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेस में आता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब आपका हार्ट छोटा हो जाता है। लेमन वर्ड्स में समझते हैं, जैसे हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं, जब मेरा बाइसेप्स छोटा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेस है। उसी तरीके से मेरा हार्ट जब छोटा हो जाता है तो यानी कि मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, अब पूरी बॉडी में पंप, जो ब्लड पंप करना है, वो कॉन्ट्रैक्शन फेस को बोलेंगे सिस्टोलिक फेस। उसके बाद जब ये पंप हो चुका होता है ब्लड, तो आपका हार्ट रिलैक्सेशन फेस में चला जाता है। रिलैक्सेशन फेस को बोलते हैं डायस्टोलिक फेस। उस वक्त आपके हर चैम्बर्स में ब्लड भरना शुरू हो जाता है। इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कि बिगिनिंग ऑफ वन साइकिल to the beginning of the next cycle, that is called cardiac cycle. So we need to understand these steps, and these are interlinked area. Now the next area which I want to make you understand, systematic circuit and pulmonary circuit. ये होता क्या है? जब तक अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हमें इन दोनों सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। आई हैड मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस हार्ट। आपका जो लेफ्ट साइड का एरिया है, दैट इज for what? That is for your pure blood. Right side का area है, that is for your impure blood. So जब मेरा जो impure blood है वो lungs में जाता है और वापस lungs में आता है, that is called pulmonary circuit. यानी कि मैं और layman word में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा heart से मेरे lungs में जो blood जाता है, जो deoxygenated blood होता है, वहाँ पे pure blood जो वापस मेरे heart में आता है, इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। इसके बाद अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि ऑटा जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है, उसके थ्रू जब वो पुश करता है तो ऑटा के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा आर्टरी, यानी कि एक बड़ा पाइप छोटे पाइप में लग जाता है, छोटा पाइप बन जाता है। वो छोटा पाइप उसके बाद आर्टरीज बन जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियोलिस। ऑलराइट, छोटी छोटी आर्टरीज बन गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कैपिलरीज। यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीनेटेड ब्लड था वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जितना चाहिए था आगे ट्रैवल करने के लिए, कैपिलरीज में अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया है। जितना ऑक्सीजन चाहिए था कैपिलरीज में
सेलुलर लेवल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से ले लिया है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे ट्रैवल करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, वेन्यूल्स आते हैं, वेन्यूल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेन्स का, और वेन्स जब आगे बढ़ती जाती है और जब वापस आपके हार्ट में कनेक्ट होता है तो एक एरिया नीचे से कनेक्ट होता है। ये जैसा मैंने बताया आपकी हार्ट की शेप 3D शेप होती है, तो अगर मैं इसको अगर यहाँ से देखूँ तो एक्चुअली वो पीछे से आके ऊपर एंटर कर रही होती है। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, और एक एरिया जो ऊपर से कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। ये सबसे बड़ी वेन होती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में एंटर कर जाता है। सो दिस इज द होल फंक्शन विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्किट। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट एरिया जो आपके हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड है वो है कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस वर्ड को पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या टेक्निकल वर्ड आ गया है। इस टेक्निकल वर्ड को मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कार्डियक आउटपुट यानी कि 1 मिनट में आपके हार्ट ने कितना ब्लड पुश किया लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। या इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, इसको मैं जो इक्वल टू व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इसका जो नेक्स्ट एरिया है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक बीट पे आपका हार्ट कितना ब्लड पुश करता है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और नेक्स्ट फेज जो कि मैंने आपको बताया हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट, आपकी एक बीट पे कितना ब्लड पुश किया। यानी कि ओवरऑल कार्डियक आउटपुट की जब हम बात करें तो हमें इन दो चीज़ों को भी साथ में रिलेट करना पड़ेगा। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ आई विल मेक इट मोर इन सिंपलर वर्ड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पुश करता है ऑर्टिक वॉल के थ्रू पूरी ऑल ओवर बॉडी में, इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जब आपका हार्ट सिस्टोलिक फेज में पहुंचता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंचता है, और जो एक जैसी वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो एक पहली बीट होती है उसमें वो कितना ब्लड पुश करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करते जाते हैं, 6 महीने 1 साल के आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेसिफिकली जैसे रनर हैं, एथलीट हैं, तो आप देखेंगे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। और दूसरी ओर आपका हार्ट रेट जो कि यूजुअली 70 to 72 एक जेंटलमैन के लिए होता है, एक अडल्ट के लिए होता है, या एक फीमेल के लिए 70 to 80 के बीच में होता है, ये रिड्यूस होके एथलीट कैटेगरी में 40, 45 और कई बार तो 40 से नीचे भी चला जाता है। तो इट्स नॉट अलार्मिंग सिग्नल, यानी कि आपके हार्ट को पूरा टाइम मिल रहा है रेस्ट फेज के लिए, यानी कि हर बीट में वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पुश कर पा रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा साइन है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर उसका रेस्टिंग हार्ट रेट कम है, अगर वो एथलीट है, वो एक्सरसाइज करता है, तो उसका हार्ट रेट नीचे चला जाएगा और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। ये भी एक हार्ट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। Thank you very much. I hope you enjoy this lecture. If you have any questions, you can come back to us. We are there to support you, and GSP Academy is available to provide you the best service. Thank you very much.